Hey students, today we are going to start our new chapter, that is materials, metals and non-metals of class. So let's start the chapter. So let's first discuss materials. What is materials? Materials is like everything around us. We call it as a material. Okay. Now we can divide the materials into two groups, that is metals and non-metals. हमने इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया. First one is metals and second one is non-metals. Okay, now after dividing these material into metals and non-metals, in this chapter we are going to discuss about the properties of metals and non-metals, like properties of the materials. So for discussing the properties of the materials, we have to discuss which type of property we are going to discuss. So properties of materials. In this chapter our main topic is properties of materials. Okay, now properties of materials is going to be divided into two, like physical property and chemical property. First one is physical property, that is physical property, and second one is chemical property. Okay, second one is chemical property. Now can I come to know कि what is physical property and what is chemical property. प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता है किसी की क्वालिटी, किसी की हमें उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेनी हो कि वो चीज़ एक्चुअली क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे वर्क करता है. ठीक है ना. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज करो किसी चीज़ का अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, मतलब वो हार्ड दिखता है, सॉफ्ट दिखता है, या फिर वो शाइनिंग स्ट्रक्चर है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो उसका कलर कैसा है, मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट कैसे करता है, मतलब कोई भी चीज़ है वो किसी भी और ऑब्जेक्ट से किस तरीके से रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करती है, तो वो आता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर. सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, physical property. Now on the basis of physical property we are going to divide this property into 7 parts. First one is hardness. We are going to hardness. Second one is lustrous. I'm going to discuss all these properties again. Just let me write down all the properties, then we will discuss. Lustrous. Okay, third one is malleable. Fourth one is ductile. Fifth one is, after ductile, sonorous. Sixth one is good conductor of heat. And seventh one is good conductor of electricity. Okay, so these are the properties of metals and non-metals. We have to divide metal and non-metal on the basis of these property कि कौन सा metal है and कौन सा non-metal है. सबसे पहले we are going to start with the hardness. Like hardness से word से समझ में आ रहा है कि object hard है या soft है या कैसा object है, उसके basis पे हमें उसको metal और non-metal की category में डालना है. If the object is hard, then it is going to be in the metals property. If the object is not so much hard, then it is going to be the non-metals property. Let's take some examples. Suppose iron is a hard object, so it is going into the metals. But on the other hand, wood hard होता है इतना ज़्यादा, उसको हम break कर सकते हैं easily, so it is going into the non-metals category. Okay, now let's take another example, another property, that is lustrous. Lustrous का मतलब क्या होता है कि उसके जो surface है वो shiny है या नहीं है, उसके जो surface है वो किस तरीके की है. तो लस्टर मतलब शाइनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए. तो इन द टर्म ऑफ मेटल्स द surface of the
ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी शाइनिंग, मतलब जो ऑब्जेक्ट है सरफेस होता है काफी ज्यादा शाइनी होता है, तो उसको हम बोलते हैं लश्यरस। अब नॉन मेटल्स के टर्म में ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा वो इतना ज्यादा शाइनी नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी विल डिक्लेयर द नॉन मेटल्स आर मैक्सिमम नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यरस। ओके, नाउ मेलेबल की बात आती है। व्हाट इज मेलेबल? मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल मीन्स किसी भी चीज को अगेन अगेन बीट करना, मतलब ठोक ठोक के उसको एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबल। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को बीट करके उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। और ये चीज़ वुड में नहीं हो सकती, क्यों? सॉरी, नॉन मेटल में नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन मेटल को जब हम बीट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, बट जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ब्रेक नहीं होता, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, वो अगेन एंड अगेन उसको बीट करना पड़ता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मेटल में हमने ले लिया, आप लोग डेली जो स्वीट्स खाते हो उसके ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगी होती है, तो सिल्वर फॉइल इज मेड अप फ्रॉम सिल्वर एंड सिल्वर इज अ मेटल। ओके, नाउ सिल्वर को अगेन एंड अगेन बीट करने के बाद एक पतली सी शीट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज सिल्वर फॉइल, एंड वी आर गोइंग टू यूज इट ऑन द स्वीट, और हम उसको खाने के पर्पज से यूज करते हैं, राइट? Now we can take another example like aluminum foil. We are using aluminum foil in our kitchen also. So in the kitchen, when your mother is going to pack your tiffins and lunch boxes, she used to wrap the food with the help of aluminum foil. Is it so? Now aluminum foil is also made up of from aluminum metal, and this aluminum metal is again beating again and going to be converted into the thin sheet. So आपका हार्डनेस क्लियर हो गया, लश्यरस क्लियर हो गया, देन मेलेबल क्लियर हो गया। अब बारी आती है डक्टाइल की। डक्टाइल का मतलब इसमें होता है शीट्स, उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसमें मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है वायर के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? वायर के फॉर्म में। मेटल्स को, नॉन मेटल्स वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब मेटल्स को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सपोज करो आयरन वायर है, कॉपर वायर है, कभी आपने वुड वायर सुना है? नहीं सुना। So converting metals into the wire is called ductile. Okay, now third one is sonorous. जब आप किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को बार बार बीट करते तो उसमें से क्या जूम 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 करके कुछ साउंड आती? नो। बट अगर आप आयरन या फिर घर में बर्तन होते हैं जो स्टील के, उनको बीट करते तो आपको एक अलग सी जूम जूम करके आवाज है, मतलब बहुत काफ़ी सोनोरस होते हैं मेटल्स। तो मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी कि दे आर टू मच सोनोरस ऑल्सो। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है? मतलब ये तो मेटल और नॉन मेटल दोनों जल तो दोनों ही सकते, मैं जलने की बात नहीं कर रही, कंडक्शन की बात कर रही हूँ। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंडक्शन होता है। अगर मेटल होंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। मतलब अब सपोज करो घर में मम्मी यूज़ करती हैं, एक फ्राइंग पैन यूज़ करती हैं, उस फ्राइंग पैन में वो जब हम नीचे से हीट ऑन किया जाता है, जो गैस स्टोव ऑन किया जाता है, तो वो फ्राइंग पैन तो काफ़ी गर्म हो जाता है, बट वो प्लास्टिक गर्म होती है क्या? जिसपे हैंडल पे जो प्लास्टिक लगी होती है वो गर्म होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। But on the other hand, plastic is a non-metal, and on the other hand, for metal, for the property of metal, that जो पैन है वो मेटल होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। मतलब उसने क्या कंडक्ट किया? हीट को कंडक्ट किया। अब कंडक्शन ऑफ हीट आपको समझ में आ गया, तो हम बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? मतलब वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर रहा है। अब सपोज को घर में आपके कुछ इलेक्ट्रिशियन आता है, तो जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो मैक्सिमम किससे बने होते हैं? वो आगे से तो आपके जो मेटल होता है उससे बने होते हैं, बट उसके पीछे जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है? क्योंकि प्लास्टिक कभी भी कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, आपको शॉक नहीं लगेगा। बट वो जो मेटल है, अगर आप उसको टच करोगे, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको शॉक लग जाएगा। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होता है कि नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी आज के लिए डिस्कस कर ली कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।